हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 11 सोशल साइंस का, यानी सोशल साइंस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। यानी देखा जाए तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ रहे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पे जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चर्चा करने से पहले जो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, significance of biodiversity. There is a significance of biodiversity. Biodiversity is a fundamental to the existence of the life on the earth. Its significance cannot be underestimated. Cannot be underestimated. There are the varieties of the living things that exist in a given a physical environment. These are the interdependent. These are interdependent and integrated in their form of on the ecosystem. Do you know that plants occur in a district of group of communities in area having a similar climatic condition? There are similar climatic condition. The nature of vegetation in any area determines their animal life. When the vegetation of place is altered, animal life also change, and ultimately it is affected mankind. Loss of one component in the system adversely is affect other component of the system. We are an integrate part of the ecosystem, and by cutting trees and killing animal and human beings lead to ecological imbalance. How does the ecosystem get influenced by human beings? There is a most important question. How does ecosystem get influenced by human being? Collect some articles from the newspaper and magazine, which will be help you understanding human impact on ecosystem. You know that there is important. There is the collect some articles from the newspaper and magazines, which will be help you understanding the human impact on ecosystem. We must understand that all plant and animal in an area are interdependent. There is a all animal and plant in the area, there is interdependent and interacted in their physical environment. Ecosystem is extremely valuable and different fact of human life, which include the flowing, the providing to food, water, fiber, fuel, etc., and regulating of climate and disease. For example, people are suffering from cold and cough in winters and stomach infection in the monsoon, etc. That's important. Suffering from the cold and cough in winter and stomach infected in the monsoon, etc. The next year, cases of the loss of biodiversity. That's important. Cases of loss of biodiversity. Increasing population and changing lifestyle lead to extensive commercial is explanation on the natural resources. The increasing of population and changing lifestyle lead to be extensive commercial and exploitations of the natural resources. This result
in a loss of biodiversity. This result in loss of biodiversity. Consequently, it is adversely affect the ability of the nature to continue delivering their goods and service for human extensions. The loss of biodiversity affect not only the physical environment but also the social, cultural, religious, and spiritual well-beings of human life. That's important. Here show the most important a pie chart here, a loss of biodiversity. You know that there is a white here circle, the primary cases, and there is a colorful is show here, root and underdwelling cases. This is important. This is important here. Increasing population, commercial exploration, public policies, and change lifestyle and development. There is a maximum here, but primary cases here over harvesting, climate change, deforestation, poverty, pollution. There is a biodiversity loss of an animal. There is a most important pie chart on your screen. The most important point here, United Nations had proclaimed to be year 2010 the International Year of the Biodiversity. There is a most important point for the all competitive exam here. The United Nations held to the proclaimed their year 2010 the International Year of Biodiversity. And according to the IUCN, International Union of Conservation of Nature, there is a IUCN, there is an International Union of Conservation of Nature. By the 2010, around to the 18,788 species out of 52,070 so far exist to the threatings with the extension. That's important here. 52,000, but is 18,000. 2010 is accordingly. There is a most important point here. Of the world, 5,490 members and 70 extincting. There is a 188 critically in danger and 540 in danger and 492 variable. Amphibians are also in the danger of extinction, and the 1,895 of the planets 600 285 are the most threatened of group of species. Planet is also here threatened. And question of the invisible species, destruction of the natural habitat and land user conservations and climate change, population and degradation is a continue at the alarming rate. Do you think this has anything to do with the extinction of the various species? यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व भी अपने स्थान पे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात को तरफ यहाँ पर बताया गया है कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। कहते हैं अगर किसी भी मंजिल का अगर आधार कमज़ोर हो तो मंजिल बहुत ही जल्दी गिर जाता है। तो सोचिए जब पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैव विविधता एक आधार है, हम तो आधार को ही खोखला कर रहे हैं, हम तो आधार को ही नष्ट कर रहे हैं। तो सोचिए कि हमारे धरती पर क्या जीवन का अस्तित्व बना रह सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और शायद इस बात से आप भी भली भांति समझते हो कि पृथ्वी पर अगर जीव जंतु नहीं रहे, पेड़ पौधे नहीं रहे तो मानव का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। फिर हमारे लिए तरक्की क्या और आधुनिकीकरण क्या, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कहते हैं जब जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तभी मनुष्य है। क्योंकि अगर देखा जाए पृथ्वी पर आधार है तो जैव विविधता ही पृथ्वी पर जो है आधार है और इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। जैसे आज बड़े बड़े लोग सब जो है इसको आंक रहे हैं। वो तो कहते हैं पता नहीं पैसे कमाने की होड़ में ऐसे लगे हुए हैं, ना तो उनके सामने कोई पर्यावरण दिखता है और ना ही कोई आने वाला भविष्य दिखता है। उनके सामने तो सिर्फ पैसे ही जेब में चाहिए। मैं पूछता हूँ ये बात कि इतने पैसे लेके क्या कीजिएगा? कहते हैं जब इंसान जीवन को त्यागता है तो हाथ में उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन आप न जाने कितने जीव जंतु, कितने पेड़ पौधों को नष्ट करके इस धरती से जा रहे हो।
तो धरती के लिए क्या छोड़ा तो आपने? ये गलत है। कहते हैं जीवन में उतना ही हमें कष्ट करने की कोशिश करना चाहिए जिससे दूसरे को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। लेकिन क्या करें, आज लोग इतने अंधे हो गए हैं कि पेड़ पौधों को तो ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं। कहते हैं हमारे पास, कहते प्राकृतिक चीज़ों को तो ऐसे मार रहे हैं अपने यूज़ के लिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जबकि हम सिंथेटिक चीज़ भी हम बनाना जान चुके हैं, सीख चुके हैं, फिर भी जीव जंतु की हत्या होती है। इवन कि देखा जाए जीव जंतु को अगर मारने में कोई केस दायर किसी के ऊपर होता है तो कहते हैं ये केस तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, डेट आती रहती है, डेट चलता रहता है और उसका कभी फैसला आता ही नहीं है। क्यों आएगा? बड़े लोगों ने जो ये काम किया है तो उसका फैसला क्यों आएगा? क्योंकि कहते हैं ना, अदालत भी तो वही है जहाँ पर इंसाफ इतनी जल्दी मिलती नहीं है। कहते हैं दोस्तों, ये हमारा अस्तित्व के सवाल उठ रहा है। कहते हैं अगर दूसरे जीव जंतु को ख़त्म कीजिएगा, पेड़ पौधों को नष्ट कीजिएगा तो कहाँ से इंसान आगे बढ़ पाएगा, कहाँ से संसार में जो है जीवन का अस्तित्व बना रह सकता है। और ये बात यहाँ इस पॉइंट भी बता रहा है कि इसको महत्व कम करके आंका नहीं जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जीव जो है क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक वातावरण में रहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पृथ्वी सिर्फ मनुष्य का ही नहीं है घर। एक वायरस से लेकर बैक्टीरिया तक, एक छोटा सा जीव से लेकर जानवर तक, सभी का है। लेकिन इंसान जो अपने आप को पावरफुल कह रहा है, शायद वो तुच्छ है। और इसका सबूत भी देखने को मिला। जब कोरोना वायरस आया तो सब के सब सिमट के रह गए और किसी का कुछ नहीं चल सका। कहते हैं लोगों ने वैक्सीन भी अपने आप में खूब लगवाया, लेकिन उसका भी कुछ नहीं होने वाला है। आप लगाइए और देखिए आने वाले में इसका कैसा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगा वो भी आपको उजागर होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पर्यावरण के साथ जो मिला हुआ रहेगा जीवन में हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि ये भौतिक वातावरण में रहते हैं और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में अन्यामिश्रित और अंतर्वशिष्ट हैं, यानी अन्यामिश्रित और अंतर्वशिष्ट हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों को सामान्य जलवायु दशाएं वाले क्षेत्र में अलग समुदाय या समूह में पाए जाते हैं? क्योंकि ये अलग अलग समुदाय में रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की प्राकृतिक जानवरों के जीवन को निर्धारित करती है। आपने देखा भी होगा कि ये आहार श्रृंखला होती है। पेड़ पौधे खाने वाला जीव जंतु है, जीव जंतु खाने वाला जीव जंतु है, तो ये आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला में आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी जीव जंतु को अगर आप उसमें से नष्ट कर देते हो तो उस पर आश्रित होने वाले सभी जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। जब एक जगह के वनस्पति में बदलाव आ जाता है तो जानवर को भी जीवन में बदलाव और साथ ही साथ ये मानव जाति को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब देखिए ये शब्द कहते कितने महत्वपूर्ण हैं। आप शायद शब्दों को सिर्फ देख रहे हो, इसकी गुणों को नहीं समझ रहे हो कि जब जानवरों को भी जीवन में बदलाव आएगा। क्यों आएगा? जब किसी वनस्पति को आप नष्ट करोगे। और जब जानवरों में बदलाव आएगा तो मनुष्य क्यों नहीं प्रभावित होगा, ये बताइए मुझे। आज जो बीमारी इतने हो रही है, कहीं ना कहीं हमारी बदलती आदतें भी हैं, कहीं ना कहीं बदलती आदतें हैं। कहते हैं बहुत सी ऐसी बातें हुई है आज के समय में जो सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो हम आधुनिकता के आड़ में हर चीज़ बदलते चले जा रहे हैं, क्या ये पुराने समय में ऐसा हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। अब एक ही मैं बात करता हूँ, अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में क्या सिलेंडर हुआ करता था खाना पीना बनाने के लिए? ये मैंने आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि उस समय देखिए अगर सिलेंडर पे कहते हैं खाना बनता है तो बहुत से लोगों ने ये विचारधारा रखा है कि इससे गैस बनती ही बनती है, पेटों में गैस बनता है और गैस से आपको पता है हर एक व्यक्ति परेशान है। पुराने समय में फिर सिलेंडर यूज़ क्यों नहीं की जा रही थी? क्या आज हम इतने आधुनिकता में आ चुके हैं? क्या पहले के समय में लोग लकड़ी पे खाना नहीं बनाया करते थे? प्राकृतिक भी वो लोग संरक्षण करते थे, क्योंकि प्राकृतिक से लकड़ी मिलता था, तो प्राकृतिक में पेड़ पौधे भी बहुत लगाया करते थे और उसी की लकड़ियों का यूज़ करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज सिलेंडर ने उसकी जगह ले लिया है, तो सोचते हैं कि पेड़ पौधे लगा के क्या मिलेगा। सरकार भी अच्छा खासा प्रोग्राम बनाती है, जब कोई पर्यावरण
दिवस होगा तो 2-4 पेड़ लगा के तस्वीर खिंचवा लेती है, उसके बाद दोबारा कोई नज़र भी नहीं आता पेड़ पौधों के साथ। तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये बदलता हुआ लाइफस्टाइल हमारे जीवन को कहीं नष्ट दहस तो नहीं कर रहा है? जो आए दिन आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते जा रहे हो, बार बार दवाई खा रहे हो। आज तो कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका सुबह दवाई से स्टार्ट ना होता हो। अरे भाई, आज नहीं हो रहा है, कल तो होगा ही होगा। अब क्यों सोच में पड़ गए कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ दवाई, कल जब बीमार पड़ोगे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सब हुआ क्यों? ये सब हमारे प्रकृति के खिलवाड़ करने के कारण हुआ है। मानव जाति बहुत ही इससे प्रभावित हुई है। पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी घटक के नुकसान पर प्रतिकूल परिस्थितियां तंत्र के अन्य घटकों को प्रभावित करती है। देखिए, साफ बात लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी घटक को आप नुकसान पहुंचाते हो तो इसका दूसरे प्रजातियों पर प्रतिकूल परिस्थिति तंत्र के अन्य घटकों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए सोचने वाली बात है कि हमें जीव जंतु को संरक्षण करना चाहिए, और इस पे जो है एक छोटा मोटा कानून नहीं, सख्त कानून होना चाहिए। कहीं भी अगर कोई ठेकेदार, कोई भी बिल्डर अगर ज़मीन बेच रहा है, जंगलों के क्षेत्र को बेच रहा है, सरकार को इस पर कदम से कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार भी क्या करेगी? रजिस्ट्री कर देती है फटक से, क्योंकि सरकार को जेब में पैसा हो जाता है। अब देखिए जाकर कहीं किसी भी क्षेत्र में जब सरकार के पैसे कम जाते हैं तो बिल्डोजर लेके आ जाते हैं घर तोड़ने के लिए, और जैसे जेब में पैसा ठूस देते हैं, बिल्डोजर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब क्या है? क्यों दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत सख्त कानून प्रशासन बने हुए हो? अगर आपको कानून सख्त बनाने तो आप रजिस्ट्री ही नहीं करते। सबसे पहली बात रजिस्ट्री ही नहीं करते। तो ये क्या लोगों से पैसा सुनने के लिए आए दिन चले आते हो? शायद आपको ये बात नहीं नॉलेज है कि उस जगह को बेचारे ने खरीदने के लिए ना कितनी तरह के मेहनतें की, और आप बना बनाया चीज़ को 2 सेकंडों में नष्ट कर दिया। इसका ठेकेदार का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आम गरीब का, उसके आंसू बहेंगे। बड़े लोगों का तो कुछ नहीं है, 1 रुपया की चीज़ 50 लाख में बेच के आती हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए, सरकार अगर इस पर सख्ती बरतती तो शायद वो ज़मीन भी नहीं बिकता, और आम गरीब जो है 1 रुपया इकट्ठा करके उसको खड़ा भी नहीं करता। तो ये बात कोई नहीं सोचता है। आज हर क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ी खेल खेली जा रही है, जो पर्यावरण को नष्ट करने के लिए खूब जोर कोशिश किया जा रहा है। हम पारिस्थितिक तंत्र का एक विभिन्न भाग हैं, क्योंकि हम भी जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग हैं। पेड़ काटने, जानवरों को मारने के कारण मनुष्य पारिस्थितिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। तो मनुष्य ही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि मनुष्य अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया है और कहता है कि मैं बहुत सभ्य हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सभ्य हैं। कहते हैं किसी जीव जंतु को मारना और काटना ये सभ्यता का निशानी कभी नहीं हो सकती। जो अपने आप को सभ्य कहते हैं और जीव जंतु पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, समझिए वो सभ्य नहीं है, वो असभ्य हैं। पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं, ये आपने आए दिन समाचार पत्र और पत्रिकाओं में लेखिकाओं में देखे ही होंगे। सबको इस बात का पता है, लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और कहते हैं भाई मुझे क्या लेना इससे। यही बात है ना, गांधी जी भी यही बात सोचते कि भाई मुझे देश को आज़ाद करा के क्या मिलना है, तो शायद देश भी हमारा आज़ाद नहीं होता। इसलिए आप जो सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, आप लोग भी प्रयत्न कर सकते हो, कोशिश कर सकती हो। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, सरकार सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाती है, कुछ नहीं करती। सरकार तो कहते हैं ना, उन सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि 5 साल के बाद अपने सीट को हम कैसे बचा के रखें, कहीं दूसरा पार्टी उस पर अधिकार ना कर ले। इसलिए वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाती रहती, तरह तरह के कमेंट मारती रहती, तरह तरह के जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाती रहती है, और पेड़ पौधे जीव जंतु को जो है नष्ट करती रहती है, क्योंकि सब ये खेल है। तो इन खेल में आम नागरिकों को नहीं फंसना चाहिए। आम नागरिकों का दायित्व है कि पेड़ पौधों को संरक्षित करें। कहीं अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधे काट रहे हैं तो आपको उसको संरक्षित करना चाहिए। और आप सोचिएगा कि मैं कैसे संरक्षित कर सकता हूँ, तो मैं आपको जो है चिपको आंदोलन का याद दिला देता हूँ। अगर सोचिए, उन महिलाओं के पास बच्चे नहीं थे जो चिपको आंदोलन के कारण मारे गए, क्या वो भी वही बात सोचते जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे पेड़ पौधों से क्या, मैं संरक्षण कैसे कर सकता हूँ? तो शायद चिपको आंदोलन भी आपको पढ़ने को नहीं मिलता। वो औरत अगर यही बात सोचती कि पेड़ पौधों काटने से बचाने से मुझे क्या मिलता, तो शायद जो है चिपको आंदोलन की हिस्ट्री भी नहीं बनती। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं एक कुछ बनाना है आगे तो कुछ करना है। कहते हैं बहुत कुछ आप लोगों ने कर लिया, पर्यावरण के लिए कुछ करके देखिए।
जिससे आप जीवन निर्धारित होता है। हर जीव जंतु इसी से चलता है। कभी किसी जीव जंतु को संरक्षित करके देखिए, बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। कहते हैं हम आम इंसान हैं, आम गरीब हैं, हमारे पहुंच इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन मैं तो हैरान उन लोगों से हूँ जिन्होंने ये किताब पढ़ के आगे गए। हमसे अच्छा ज्ञान नहीं, उनके पास ज्ञान है, लेकिन जैसे वो कोई पद ग्रहण कर लेते हैं, सारा जीवन उनका एक ही चीज़ पे उनका अटक जाता है कि पैसा कहाँ से मैं लूँ, किससे असलूँ, किसको गला काटूँ। यही विचारधारा बड़े बड़े लोगों के दिमाग में चलने लग जाता है। कहते हैं बड़ा बनने के बाद इंसान को जो है जितना अपने लिए करना चाहिए उतना पर्यावरण के लिए करना चाहिए, लेकिन उनका पर्यावरण की तरफ थोड़ा भी रुख नहीं होता है। पढ़ के यही किताब सब जाते हैं। इवन कि बीए में जाइए, बीए में तो पर्यावरण अगर आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपको डिग्री भी नहीं मिलने वाला है। इवन कि अगर छोटे क्लास में देखिए पर्यावरण आ चुका है, हर क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में वो बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी गई है। लेकिन जब ये लोग बड़े बन जाते हैं, कोई अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं, तो इनका रुख बिल्कुल ही बदल जाता है। सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि पैसे कैसे अपने घर में इकट्ठा करें। तो अब बात सोचिए ना कि जो 50,000 रुपये कमाने वाला है, 5 साल के बाद उसके पास करोड़ अरबों रुपया का संपत्ति हो जाता है। अरे भाई, अरबों रुपया कहाँ से आ गए? आप तो महीने में सिर्फ 50,000 रुपये ले रहे थे सरकार से, या लाख रुपया ले रहे थे। ये जो 75 करोड़ रुपया आ गया, इतना सुख सुविधाएं कहाँ से आ गया? बरस गया क्या आपके ऊपर? ये आपको भी पता है और आपको भी समझ है इस बात की, लेकिन हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी पहुँच ही नहीं है। जब कोई मंत्री पर कोई कहते हैं अगर छापा उपा पड़ती है तो एक ही बात बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी का सब षड्यंत्र है, सब चाल है। चलिए, आप भी चाल चलिए। पर्यावरण किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, वो तो जो करना है वो तो करेगा ही करेगा। पर्यावरण नहीं सोचता है कभी भी। आप जितना मर्जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर लीजिए, जितना पैसे इकट्ठा कर लीजिए, एक बाढ़ आएगा और सारे पैसे पानी बन के उड़ जाएंगे। पर्यावरण का तो आपने संरक्षण किया ही नहीं, तो कहाँ से आपका कुछ बच पाएगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। कहते हैं दोस्तों, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत हताश हूँ। कहते हैं पर्यावरण को जो क्षति पहुँचाई जा रही है, और मुझे सिर्फ आप ही एक माध्यम हो जिससे मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मन जो होता है दुखी हो जाता है। जब पर्यावरण के ऊपर कोई चैप्टर आता है, कोई टॉपिक आता है, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण है और मैं हताश हूँ इस पर्यावरण के देख के, क्योंकि चारों तरफ जो है पर्यावरण का विनाश का लीला ही रची जा रही है, जो सही नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आप ही लोगों में कोई अच्छा बनेगा, कोई अच्छा पद पे जाएगा और मेरी पढ़ाई हुई बात समझ में रहेगा, तो शायद कोई अच्छा कदम उठा ले, तो शायद मेरा पढ़ाने का जो है सफलता हासिल हो जाएगा और मुझे हर कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश सदैव करता रहता हूँ। कहते हैं हमें ज़रूरी समझना चाहिए कि पेड़ पौधे और जानवरों के क्षेत्र में अन्य मिश्रित और भौतिक वातावरण में अंतर संबंध है, और इस पारितंत्र में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के भी अत्यंत मूल्यवान हैं और ये निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि की उपलब्ध कराना। ये सारे के सारे हमें जीव जंतुओं से ही प्राप्त होती है। जलवायु और रोग के कारण उदाहरण के लिए लोगों को सर्दियों में सर्दी, खांसी से और मानसून में पेट के संक्रमण से पीड़ित होना, ये सब के सब जो है जलवायु और रोग सब इन्हीं चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होती है। उसके पश्चात है जैव विविधताओं की कमियों के कारण। कहते हैं बढ़ती आबादी और बदल रही जीवन शैली की प्राकृतिक संसाधनों के जो है व्यावहारिक दोहन करना जिम्मेदार करना है। यानी यही कारण सबसे बड़ा बना है कि प्राकृतिक चीज़ों का जो है हम दोहन अधिक से अधिक कर रहे हैं। दोहन का मतलब होता है दोस्तों नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जैव विविधता के नुकसान में यह परिणाम आया है, और परिणाम स्वरूप यह प्राकृतिक को योग्यता मानव अस्तित्व के लिए माल और सेवाओं के वितरण की क्षमता को प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैव विविधता की कमी से न केवल भौतिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पे भी काफ़ी हर्ष हो रहा है। तो हर क्षेत्र में देखिए, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी चीज़ों का जो है विनाश हो रहा है, हर्ष हो रहा है। अब यहाँ पर एक जो है पाई चार्ट आपके समक्ष है, जैव विविधता और पेड़ पौधों को हानि किस प्रकार हो रही है। तो आप देख सकते हो कि मूल कारण जो यहाँ पर है वाणिज्यिक शोषण, बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली और विकास, सार्वजनिक नीति। तो इससे सबसे अधिक पर्यावरण प्रभावित हुई है, और ये पाई चार्ट भी जो है बिल्कुल इस बात को उजागर कर रहा है। अगर हम बात करें प्राथमिक कारण की, तो प्राथमिक कारण तो एक ही है। देखिए, अधिक कटाई हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई, गरीबी, जनसंख्या।
तो देखिए ये सब मानव के द्वारा ही काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। तो मानव को अपनी सोच विचार को बदलने की आवश्यकता है और पर्यावरण को संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब देखिए इन सब बातों से तो यही बात यहाँ पर उजागर हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वर्ष 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी। देखिए कहते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की घोषणा हुई है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इवन कि IUCN भी जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है के अनुसार 2010 में 52,000 में से लगभग 18,000 प्रजाति विलुप्त होने की सूचना दी गई। देखिए 18,000 प्रजाति विलुप्त हो गई, क्यों हुई? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है नेटवर्क है। और ये शायद आपको फिल्मों में भी दर्शा के दिखाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के समक्ष सब कुछ रहेगा लेकिन फिर भी वो अंधा बन के रहेगा। कहते हैं फिल्मों में भी ये सब बातें दर्शाई जाती है कि ये सब नेटवर्क जो है कंपनियां अपने लालच की आड़ में, अपनी जो है उपभोक्ता बढ़ाने के चक्कर में, अपनी सेवाओं को उच्च करने के चक्कर में तरह तरह के जो है हड़कंडे अपनाती है। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती है। सरकार को तो इलेक्शन में इनसे पैसे मिलती है, तभी तो कुछ नहीं करती है। क्या करेगी वो? उनको कहते हैं जीव जंतु से क्या मतलब है, क्या लेना है प्राकृतिक से? शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्राकृतिक प्रेमी नेता हुए हों जो शायद प्राकृतिक के विनाश के लिए काफ़ी चिंतित हो। लेकिन आज तो सिर्फ नेता लोग एक ही बात से चिंतित है कि मैं कैसे बड़ा पद पे हासिल करूं, कैसे अपना सीट को जो है जमा के रखूं। ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की। संसार की देखा जाए तो 5,490 स्तनधारियों की जो है 78 विलुप्त हो गए हैं। देखिए स्तनधारियों में 78 यानी कम से कम 80 के आसपास विलुप्त हो चुके हैं, जो अपना अस्तित्व ही अब दुनिया में खो चुके हैं। इनका कोई अस्तित्व अब नहीं बचा। अब 188 जो है गंभीर खतरों में है। अभी भी 188 गंभीर खतरों में है, यानी वो कहीं कहीं रेयर क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहे हैं। 540 खतरों में है और कमज़ोर भी हो चुके हैं। अब देखिए सारे जीव खतरों के निशान से गुजर रहे हैं और ये आंकड़े जो हैं 2010 की हैं। अगर 2023 तक की बातें करें तो शायद ये आंकड़ा बहुत ही बदल चुका होगा और बहुत से जीव जंतु जो है अपने जीवन की कुर्बानी दे चुके होंगे। एम्फीबिया भी विलुप्त होने के खतरे में है। एम्फीबिया देखिए, एम्फीबिया में होता है जो जल में और जो है धरती पर रहते हैं, एम्फीबिया में कहा जाता है और वो विलुप्त होने वाले हैं। संसार की कुल 6,285 में से 1,895 प्रजाति को सबसे अधिक समाप्त होने की धमकी दी गई है। बताइए 1,800 यानी 2,000 करीबन 6,000 में से 2,000 विलुप्त होने के कगार पे हैं। अब इतने बड़े आंकड़े से मैं क्या समझाऊं आपको कि इतना गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है, हो चुकी है और होने वाली है। अलग अलग प्रजातियों विलुप्त होने और प्राकृतिक विनाश, भूमि उपयोगिता रूपांतरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और निम्नीकरण में हर्ष हानिकारक दर पर जारी है। यानी आज भी जो है ये रुका नहीं है। कहते हैं आज हम बहुत सभ्य हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रकृति का ऐसा विनाश किया है और विनाश लीला खेला है जिसका कोई अर्थात वर्ड शब्द नहीं है। क्या आपको लगता है कि विभिन्न प्रजातियों विलुप्त होने में उपयुक्त कारणों का कोई हाथ है? तो ये तो आप पे छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि इसका मेन जिम्मेवार कौन है? अगर जो जिम्मेवार है उसको कृपया मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारक व्यक्ति कौन है, कौन करवा रहा है? सरकार करवा रहा है कि आम व्यक्ति कर रहा है? अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो मुझे सरकार और आम नागरिक में से 2 ऑप्शन में से एक लिख के भेजना है जो आपको लगता है कि पर्यावरण का विनाश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, बहुत ज़रूरी था। बहुत ही हमने मन की भी बात भी कही जो मुझे बहुत ही दुखदायक परिस्थिति बना दी, क्योंकि ये बातें ऐसी है जो पर्यावरण से रिलेटेड है। पर्यावरण कहते हैं सबका है, आपका भी है जो देख रहे हो वीडियो। ये मत सोचो पर्यावरण में आप नहीं हो, आप सांस ले रहे हो तो पर्यावरण के कारण ही ले पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है। अगर पर्यावरण का कुछ आप अच्छा देना चाहते हो, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो मुझे विश्वास है आपको दोस्तों को भी समझ में आ जाएगा और उनको भी कुछ अच्छी बातें पता लग जाएगा या दूसरे को भी पता लग जाएगा। आपने तो बहुत से स्टेटस लगा लिए, ठीक है, गाने का, डांस का,
ठीक है। लेकिन आज जो है अच्छे कामों का लगाइए, इसलिए यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, जिससे दूसरे बच्चे भी समझ सके, दूसरे लोग भी देख सके इस वीडियो को और ये समझ सके कि वो कितने बड़े जो है मुसीबत में आगे आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बातें होगी, बहुत सी समझ की बातें होगी, क्या पता उसमें आप समझ जाओ और आने वाला फ्यूचर जो है हमारा अच्छा बन जाए। ठीक है, ये सेव करने कुछ नहीं करना है, जो इस रेड बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।